Hi, very good evening. My name is Rakesh. I am the owner of the Champion Classes. Today I will talk about the some topic related to the English importance as well the different topics, separate topics. Let's start. We have one of the very best student in Champion Classes, Mr. Gopal Krishna Yadav. Let's meet and let's introduce first of all Mr. Gopal and tell me something about yourself. Short. I am Gopal Krishna Yadav. Okay. My father name is Mr. Dinesh Kumar Yadav. My mother name is Seema Yadav. I study in class 8. My school name is SW International School, Portomotugu, Jaunpur. My campus name is Champion Classes. My hobbies is playing and writing. My ideal is my mother. That's all about myself. ओके सो इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है। चलिए अब आज इनसे हम टोटल इंग्लिश में बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह ये बात करते हैं। हो सकता है कुछ गलतियां भी हो क्योंकि लोग गलतियों से सीखते हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, आज हम इनसे कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, कुछ कन्वर्सेशन करते हैं, देखते हैं इनके स्किल्स लेवल कहां तक है। ठीक है, सो आर यू रेडी? Yes sir, I am ready. Tell me something about importance of English because in this time everybody want to speak English, right? So what do you think about English? English is important. If important, so how many sector importance? So tell me the brief about the English importance. So let's start. First up, tell me. Yes sir. Okay. English is most important thing in my life and everyone's life. Without English, you can't do anything in future. English is necessary in my life and everyone's life. If you have knowledge of English, then you can be doctor, you can be teacher, you can be engineer, you can be police, you can be army, you can be advocate, you can be IAS, you can be PCS. But if you have not knowledge of English, then you can't be doctor, you can't be teacher, you can't be engineer, you can't be police, you can't be army, you can't be advocate, you can't be IAS, you can't be IPS. As you know that my friends, English is used in many sector, like English is used in cricket sector, English is used in education sector, English is used in medical sector. Now I am going to tell about medical sector. Suppose that you have fever, you went to any medical shop, that doctor given inspire medicine and you take medicine, your health is very serious, then what will you do? But if you have knowledge of English, then you can say this medicine is fire. That's all about importance of English. ओके, वेरी गुड, गोइंग गुड। इन्होंने कहा कि इंग्लिश जरूरी क्यों है और इंग्लिश कहाँ कहाँ जरूरी है, कौन कौन सेक्टर में जरूरी है। मान लीजिए आपकी तबीयत खराब होती है, इन्होंने जो इंग्लिश में कहा, हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो इंग्लिश नहीं समझते हैं, थोड़ा सा हम इसको हिंदी में ब्रीफ कर देते हैं। उन्होंने कहा इंग्लिश जरूरी है और अगर मान लीजिए आपको बुखार होता है और आप जाते हैं दवा वगैरह लेने और आपको इंग्लिश का नॉलेज नहीं है और आपने एक्सपायर मेडिसिन ले लेते हो तो आपका तबीयत खराब हो जाता है या कह ले आपकी स्वास्थ्य खराब हो जाती है, तो आप क्या करोगे? तो अगर आपके पास इंग्लिश का नॉलेज है तो आप सबसे पहले आप जो है मेडिसिन लोगे, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करोगे। अगर एक्सपायरी डेट है तो आप क्या कर सकते हैं, नियर बाय पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन कर सकते हो। इंग्लिश आज के टाइम बहुत सारे सेक्टर में, अगर आपको डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, आईएएस पीसीएस बनना है, इंग्लिश आपको आना ही चाहिए क्योंकि इंग्लिश वन ऑफ द पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। बिकॉज ये जो लैंग्वेज है ये बहुत ही ईजी है, जिसको आ जाता है उसको सरल लगता है, जिसको नहीं आता उसको कठिन लगता है। बिकॉज इंग्लिश इज अ रिस्पेक्टिव लैंग्वेज। सो लेट्स स्टार्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छा इन्होंने कहा है। चलिए हम आगे बात करते हैं। सो आप हमें बताइए व्हाट योर स्कूल नेम? My school name is SW International School. Okay, so tell me something about your school and I want to know both of your school is good. If good, what is the goodness? What is the goodwill in your school? How many students is study there? So tell me. Yes sir. My school name is SW International School. My school is situated in Tofapur. There are so many facilities in my school like RO water, computer, lab, all time electricity. That's all. Okay. There are so many students in my school. There are so many teachers in my school. That's all about my school. ओके, वेरी गुड। इन्होंने अपने स्कूल के बारे में बताया है छोटे शॉर्ट ट्रिक में। ठीक है, चलिए हम इनसे थर्ड वाला टॉपिक्स पूछते हैं। और व्हाट डू यू थिंक अबाउट एजुकेशन? क्योंकि आजकल हर कोई एजुकेशन चाहता है, हर कोई छोटे से लेके बड़ा, हर कोई प्राइमरी में जाता है, इंग्लिश मीडियम लिखाता है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा पावर टूल है। अगर आपके ऊपर एजुकेशन है, अगर आपने कुछ पढ़ा लिखा है तो आपको सही गलत फर्क होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आप हमको बताइए एजुकेशन के बारे में कुछ, कि एजुकेशन के बारे में क्या जरूरी है क्या नहीं है। So tell me something about educations. Education is most valuable thing in our life. If you have not education, then you can fail in anywhere. But if you have education, then you are look like hero. That's all about education.
ओके, वेरी गुड। और एजुकेशन मतलब शिक्षा होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, आप कहीं पे भी सरवाइव कर सकते हैं, आपको सही गलत की पहचान होती है, ठीक है। और हमें आप बताइए कि टेल मी समथिंग अबाउट चैंपियन क्लास, क्योंकि आप चैंपियन क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपके हिसाब से चैंपियन क्लासेस अच्छा है या बुरा है? अगर अच्छा है सो व्हाट इज द गुडविल, क्या गुडनेस है हमारे कैंपस की? एंड इफ बैड, हो सकता है कुछ पॉइंट्स गलत हुआ हो, तो व्हाट इज द बैडनेस, क्या आपको इसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है कैंपस में, कि ये चीजें हो जाए तो हमारे कैंपस बहुत आगे जाएगा? तो आप जो है स्टूडेंट्स के बारे में भी बताइए, कैंपस के बारे में बताइए कि आपको क्या लगता है, व्हाट डू थिंक अबाउट चैंपियन क्लासेस? It's good. If it's good, what is the goodness? If bad, so what is the badness? So tell me about your campus. My campus name is Champion Classes. My campus located at Babypur. There are so many facilities in my campus. There are many computer courses available in my campus. For my knowledge, this campus is very good because all student behavior is very good. All teachers always support to all students. For my knowledge, that have no lackness. That's all about my campus. Okay, very good. Something is better than nothing. इसका मतलब होता है कुछ नहीं से कुछ अच्छा है। और इसमें सबसे मेन पॉइंट्स है कि आप जब बोलते वक्त, आपने बहुत अच्छा बोला है। हम चाहते हैं कि हमारे जो भी स्टूडेंट है, हालांकि हमारे जितने भी छोटे छोटे स्टूडेंट है, हर कोई बहुत ही अच्छा पढ़ता है, हम ये बड़ाई नहीं करें, बट हम ये चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से काफी सारे जो और भी शहर की सिटीज के जो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम कहीं और इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किए हैं, अगर इस वीडियो माध्यम से सीख सकते हैं तो सीख जाए। क्योंकि देखिए मेन चीजें होती, सफलता जो होता है ना, बार बार दरवाजा नहीं खटखटाएगी। अगर आप रेडी हो तो ठीक है, नहीं तो फिर टाइम इज टाइट, वेट फॉर नन, समय चलता रहेगा, किसी का इंतजार नहीं करेगा। इन्होंने बताया कैंपस में कुछ ऐसे बच्चे हैं हमेशा सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे से मिलकर एक यूनियन है, और हमेशा होना भी चाहिए, क्योंकि यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। ठीक है, सो आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे, कोई भी चीज को लेके, कोई चीज इंप्रूवमेंट करना है कैंपस के बारे में, कोई चीज है? ठीक है, तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो आगे के लिए आप रेडी हो? Yes sir, I am ready. ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन आप हमको बताइए। ठीक है, इसमें हम कुछ टॉपिक्स भी आपसे पूछे हैं तो और कुछ क्वेश्चंस भी पूछते हैं। सो टेल मी समथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया, डू यू नो? Yes sir, I know. There are 28 states in India. ओके, हाउ मेनी तहसील इन जौनपुर? There are 6 tehsil in Jaunpur. ओके, एंड हाउ मेनी पुलिस स्टेशन इन जौनपुर? There are 27 police station in Jaunpur. हाउ मेनी ब्लॉक्स इन जौनपुर? There are 21 blocks in Jaunpur. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? The New Delhi is capital of India. The New Delhi is capital of India. You can say the capital of India is New Delhi. Both are is right. ठीक है, what is the capital of Uttar Pradesh? The Lucknow is capital of Uttar Pradesh. Lucknow is the capital of Uttar Pradesh. Who is the current IAS of Jaunpur? Do you know? Yes sir, I know. The Mr. Dr. Dinesh Chandra is current IAS of Dr. Jaunpur. Dinesh Chand. Okay, very good. And what is the full form of IAS? Indian Administrative Service. Okay, tell me what is the Hindi meaning of be in your limits? अपनी औकात में रहो. Okay, be in your limits का हिंदी होता है अपने औकात में रहो. I know what is your limit. मुझे पता है आपकी औकात क्या है. मुझे पता है कि आपकी औकात क्या है. ठीक है, so take care of yourself. आप अपना ध्यान रखना. आप अपना ध्यान रखो. May I drink the water? क्या मैं पानी पी सकता हूँ? May I go out? क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? Take rest. आराम करो. I can't move. मैं हिल नहीं सकता. मैं हिल नहीं सकता. Don't disturb me. मुझे परेशान मत करो. See you tomorrow. कल मिलेंगे. वेरी गुड, कल मिलेंगे. चलिए हम यहीं पे बात को खत्म करते हैं. चलिए इनसे हम अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स के लेके. ठीक है, सो आपने बहुत अच्छा बोला है. थैंक यू वेरी मच. नाइस टू टॉक विथ यू. आपसे बात करके काफी अच्छा लगा है. ठीक है, सो आपका क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे.